much, Union Minister Piyush Goyal with us this morning. And Piyush Goyal ji, zindagi badal gayi hai. From cabinet to being a candidate, contestant in this election, fighting from Mumbai North, how much has life changed for you? What do you mean by from cabinet to candidate? I continue to be in the cabinet. Cabinet? Of course, you've been for many, many years in the cabinet. I'm saying now you are in the heat and dust of elections and a contestant yourself. Is that a change of role, a change of lifestyle, a change in the kind of work that you're doing? Certainly a change in the type of work, but no, nothing new for me. I've been helping others fight elections for almost 35 years now. So it's just great fun that you're doing it for yourself. And remembering all the great times you've had campaigning, going around, let's say running Advani ji's campaign in 1989 in New Delhi when he contested for the first time in his life. And I remember we used to mount a gun, somewhat similar to this boom there. And we made a toy gun, which was a replica of a Bofors tank. And हम सब जगह जाके ट्रक में नारे लगाते थे, खाली 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 तोप दलाली. So I'm reminded of all those good old days. We used to go to every home in Bappa Nagar, Kaka Nagar, campaigning for Advani ji, and I'm doing the same now for myself. You've been a Mumbaikar for all your life. So, Mumbaikar, seat in North Mumbai, how is the challenge and has electioneering, आपने 1989 की बात कही, तब से अब तक campaigning के styles में कितना फर्क आया? मुझे लगता है with the advent of television in a big way, social media playing an increasingly important role, and there's the animal in the room which we have yet to experience, artificial intelligence and deep fakes, which would also be a matter of concern. And I do hope friends in the media are going to be very conscious and cautious about this concern. Clearly, there is a huge change from the past till now. In 89, we used to write voter slips. They are all computerized now. 89, the method was more based on pamphlets. Now it's political wars are fought on social media. However, there's a lot of similarity also. The people-to-people connect remains unchanged. The door-to-door campaign is the most effective way to reach out to your constituents. The confidence that you can generate amongst your voters that you are fighting for a party, for a cause, and a leader who will bring good governance, public welfare, and a better future for India is very important. This being a Lok Sabha election, I think it's clearly an election where national issues and India's future becomes center stage and not the local issues of, of the MLAs or of the corporators. So it's that recognition that you have to get amongst the voters, and I think then you are home and through. You're home and through? Sirf Never Modi be ka naam? overconfident in an election. Every election has to be fought with the front foot, full gusto. Keep your team under a little bit of pressure. Never be overconfident. Surprises can happen, but with Prime Minister Narendra Modi and the leadership that he's given to the country over the last 10 years, with the popularity that he enjoys today across the country, including in North Mumbai, I don't think I have much to fear. I'll give you a small example. I was out there playing Holi after many, many years, literally playing Holi with the kids and youngsters in my area. And everywhere I was asked to say a few words, I used to give a little bit of a spin about India, the growth story, blah, blah. Not much resonance. And then I would just say, Modi hai to,
And there the whole crowd would burst out, Mumkin hai. I would say, ab ki baar, the whole youngsters would be screaming 400 bar. If I would say Jai Shri Ram, the whole crowd was doubly in gusto, arms in the air. All youngsters, Jai Shri Ram. So there are a lot of similarities, a lot of newness. So the question here is that you don't really have to give an account of your work. If you just say, Modi, people believe work has been done, but that's really not what the opposition says. The opposition says, आप डरे हुए हैं, इसलिए रोज नए नए लीडर्स को आप दूसरी पार्टियों से तोड़कर ला रहे हैं और नए नए अलायंस पार्टनर बना रहे हैं जो आज तक आपने जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 10 साल काम किया, तो हम सब का काम उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हुआ. तो स्वाभाविक रूप से देश को ध्यान में आता है कि देश की जो उन्नति हुई है, जिस प्रकार से हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में आए, जो आज मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया इतने वर्षों में, चाहे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, आधारभूत सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करना और मॉडर्न अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से गरीब कल्याण और सुशासन प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉलिंग कार्ड रहा है. विशेषता रही है कि उन्होंने गरीबों के लिए बिना भेदभाव देश भर में एक जीवन के स्तर को सुधारने का, ईज ऑफ लिविंग का काम किया. स्वाभाविक है कि उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है. ऐसे में हम अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर देते हैं. हम बताते हैं कि किन किन विषयों में कैसे देश आगे बढ़ा है और कैसे अब देश की दृष्टिकोण 2047 तक विकसित भारत बनने की है. साथ ही साथ दूसरा पहलू को भी भूल नहीं सकते कि लोगों का जो विश्वास है मोदी जी के ऊपर, लोगों की जो प्रतिबद्धता है कि मोदी जी हैं तो अवश्य देश आगे जाएगा. मोदी की गारंटी पे जो उनको विश्वास है कि वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये स्वाभाविक रूप से आज प्रभाव कर रहे हैं देश भर में. और इसी के कारण शायद आपके भी सर्वे ने 400 से ज्यादा 411 या कुछ सीटें दिखाई थी और अब तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है. तो आप कल्पना करिए आगे जाके कहां रुकेगी गाड़ी. लेकिन फिर विपक्ष आप पे क्यों कहता है कि आप डरे हुए हैं? क्योंकि आप दूसरी पार्टियां तोड़ रहे हैं. पहले विपक्ष तय कर ले कि विपक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, विपक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के सामने मोदी बनाम प्रश्न चिन्ह बना हुआ है. हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को अनाउंस तो करिए कैंडिडेट. हम तो वेट कर रहे हैं कि अपना लीडर तो चिन्हित करें वो लोग. दे हैव टू अनाउंस अ लीडर. नेशन वांट्स टू नो कि हु विल बी द पर्सन हु इज एन ऑल्टरनेट टू मिस्टर मोदी, who can do half or quarter or 10% of the work Mr. Modi has done, who can inspire confidence in 140 crore Indians. तो पहले तो वो तय कर लें कि नेता कौन है, फिर तय कर लें कि केरल में गाली देंगे और वेस्ट बंगाल में मित्रता करेंगे. मुंबई में एक इंडी अलायंस, पता नहीं इंडी है अंडा है क्या है समझ नहीं आ रहा है मुझे, है तो अंडा ही वो अलायंस, क्योंकि मुंबई में उनकी सभा होती है. तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो नेता है वो वहां पे आती है, ममता जी. लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार नहीं है, तो वहां भी अलायंस टूट जाता है. पंजाब में बोलते हैं कि हमारा अलायंस नहीं है, एक दूसरे को रोज गाली दे रहे हैं. और दिल्ली में 1 या 2 सीट कुछ अलायंस की है. तो ये बड़ा विचित्र सी स्थिति है जिसमें समझ नहीं आ रहा है कि पार्टनरशिप है या नहीं है. आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सरदार पटेल मार्ग में हम मित्र हैं, जब तक न्याय मार्ग में आएंगे तो दुश्मनी करेंगे, जब तक शांति मार्ग पे पहुंचेंगे तो झगड़ा करेंगे, और फिर 3 मूर्ति मार्ग पे पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे. मुझे लगता है कि एक कुछ निर्णय करें. वास्तव में वो हमारे को टकराव देना चाहते हैं कि नहीं, हमें तो थोड़ी चिंता हो रही है कि अगर कोई रहेगा ही नहीं हमारे सामने तो हम लड़ेंगे किसके सामने, हु विल बी आवर ओपोनेंट्स.
और रही बात लोग छोड़ के उनकी पार्टी आ रहे हैं, अब अभी अभी उनका आम आदमी पार्टी का एक एमपी चूज हुआ था जालंधर के बाई इलेक्शन में, कितने 6-8 महीने पहले, 6-8 महीने पहले उनका कैंडिडेट जो एमपी चुनाव जीतता है, अगर उसको भी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है 6 महीने में ही उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये पार्टी भ्रष्टाचारी है, ये पार्टी में पता नहीं कितने घोटाले चल रहे हैं, कभी लिकर स्कैम, कभी हेल्थ का स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक स्कैम, कभी स्कूलों का स्कैम। अब इतने सारे स्कैम देख के 6 महीने में अगर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है, और मैं समझता हूं ये तो उनको अपने आप में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ये स्थिति क्यों निर्माण हुई है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आप डरे हुए हैं। विपक्ष मतलब कौन, बताइए तो सही। अच्छा, विपक्ष आम आदमी कौन? पार्टी ये कहती है। स्पेसिफिक बोलो ना। ओके, आम आदमी। एक आध पार्टी का नाम हो तो समझ में आता है, क्योंकि चलिए विपक्ष मैं समझ सबका नहीं नाम आता है एक एक करके लेती हूँ। कौन कौन विपक्ष में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने वास्तव में भारत जोड़ने की बात की होती तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करते। दुर्भाग्य ये है कि उनकी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो भारत जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। अब न्याय यात्रा में वो क्या बात करते हैं, आप याद करिए। न्याय यात्रा में बात करते हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब कास्ट सेंसस से मित्रों आप लोग बताइए, देश जुड़ेगा या देश टूटेगा? क्या होगा कास्ट सेंसस से? आखिर हम समाज को जोड़ के बिना भेदभाव के देश को आगे लेके जाना चाहते हैं या देश में खलबली मचाना चाहते हैं? वो कहते हैं जितनी जनसंख्या उतना आधार, उतना अधिकार। तो यानी फिर तो सब रिसोर्सेज अधिकांश उत्तर प्रदेश बिहार में जाने चाहिए। दूसरी तरफ उनके एक उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भाई जो स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक बयान देता है कि भाई दक्षिणी प्रदेश से जितना टैक्स आते हैं वो पूरा हमारे पास आना चाहिए, और नहीं आएगा तो हम दक्षिणी राज्यों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत से अलग हो जाए। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड कौन क्रिएट कर रहा है? राहुल गांधी जी के चुने हुए चाहते नेता। तो अब उनको वक्तव्य देने से भारत जोड़ो नहीं होता है। अपने व्यवहार में, अपने काम में और अपनी सोच में जब तक वो भारत जोड़ने की बात नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे, जब तक वो पहले अपने अलायंस को नहीं जोड़ेंगे। अभी महाराष्ट्र में अलायंस बन रहा था, एक तो पार्टी निकल के चली गई, बहुजन क्या है वो, प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी, उसने तो छोड़ ही दिया उनका दामन। आज सुबह में टाइम्स नाउ में देख रहा था, बड़े झगड़े चल रहे हैं आपस में, आप लोग भी इंटरव्यू कर रहे थे उनके नेताओं के। संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि अलायंस तोड़ देना चाहिए, कुछ लोग उम्मीद में बैठे हैं अभी भी अलायंस हो जाएगा। तो इतने बुरे हाल में है हमें देखो, अलायंस होता है हमारी शर्तों पे, सौगातपूर्ण तरीके से होता है तो होता है, नहीं होता है तो हम स्पष्टीकरण कर देते हैं। हम महीनों दिनों तक कोई लल्लो चप्पो नहीं करते हैं किसी की, और ऐसा नहीं करते हैं कि दिल्ली में अलायंस और पंजाब में टूटा। हमारी मित्रता है तो देश भर की है, राष्ट्र हित में है। अगर आपको हमारी मित्रता नहीं चाहिए, so be it, we are not worried about it. Then why are you using your real alliance partners, ED and CBI, against the opposition leaders? आपके real alliance तो उनके साथ देखिए नाविका जी, देश को हमें भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उनको भ्रष्टाचार को बचाना है, हमको भ्रष्टाचार को मिटाना है। अब वो लोग तय कर लें कि वो जो भी गलत कारनामे किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। एंड द लॉ कैचेस अप विद यू, एंड लॉ इज कैचिंग अप विद पीपल हु हैव डन इरेगुलरिटीज। तो मुझे लगता है ये बार बार बोलने से कोई भारत की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मैंने सब कोलगेट की फाइल्स देखी हैं जब मैं कोल मिनिस्टर था, रात को नींद नहीं आए ऐसे निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिए, और पार्टनर्स तो वही थे, तब भी वही थे, आज भी वही हैं। उल्टे तब ज्यादा कोहेसिव थे, आज तो आधे अधूरे हैं। लेकिन वो फाइलें अगर आप देखो, आप आरटीआई करके निकालिए,
स्टीयरिंग कमेटी 35, 36, 37 कोल ब्लॉक एलोकेशन की। आप हैरान होंगे, एक एप्लीकेंट है कोयले के ब्लॉक का, वो एप्लीकेंट सब झूठे दस्तावेज देता है, झूठी जानकारियां लिखते हैं एप्लीकेशन में अपने आप को एलिजिबल बनाने को। वो राज्य सरकार के पास जाती है, राज्य सरकार बोलती है इनको नहीं दीजिए कोल ब्लॉक, और किसी को ज्यादा अच्छा कैंडिडेट या ज्यादा अच्छा पावर प्लांट है जिसको मिलना चाहिए कोल ब्लॉक। लाइन मिनिस्ट्री के पास जाती है, बोलती है नहीं ये तीसरे को देना चाहिए। और स्टीयरिंग कमेटी में कोई चर्चा नहीं है, कोई रिकॉर्डेड डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है कि कारण नहीं है क्यों किसी को सिलेक्ट किया। जो एप्लीकेंट था उसको भी नहीं मिला, जो स्टेट ने रेकमेंड किया उसको भी नहीं मिला, जो लाइन मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया उसको भी नहीं मिला, किसी चौथे आदमी को मिला जो टोटल इरेगुलरिटी से लिप्त था। लेकिन कोई नेता ऐसे सब जेल नहीं कारनामे गया। करेंगे, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता जेल नहीं नाविका जी ऐसे कारनामे करेंगे। देखिए कानून की व्यवस्था भारत में समय लगता ही है, हम सब जानते हैं। आप अगली बार जब माननीय चीफ जस्टिस जी आएंगे तो उनसे आप इस विषय में भी चर्चा कर लेना, पर उस विषय में हम तो कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकते। तो कानून तेज गति से हो, खासतौर पे एमपी एमएलए के केसेस तेजी से हो, ये तो देश के निर्णय था और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था। तो अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रहे हैं तो स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है और अपने मैंडेट को फुलफिल कर रहे हैं। अगर ये लोग डर रहे हैं कोई, तो दिल में जरूर कोई चोट है जिसकी वजह से डर रहे हैं। चोट और खोट दोनों ही है। So let me ask you this. The charge against your government is that you run a washing machine. Anybody who has any cases against them can join your party. My question to you is not the washing machine question. My question to you is, if Mr. Kejriwal wants to join BJP, what will you do? Will his cases go away? नहीं, पहली बात तो ये चार्ज बेबुनियाद है। इट्स टोटली irresponsible and uncalled for. All the cases on anybody are going through their due course, and there will be nobody who will be spared from the due process of law. The courts will decide, the investigative agencies will do their work. There is no question of any pardon for anybody who has done wrong. Point one. Point two, clearly people who have looted the country, who have on the one hand made tall claims and promises to the people of Delhi and let down the mandate of the people, will never be welcome in the BJP. Ashok Chavan, welcomed by the BJP. Well, 2013 थोड़ा याद कर लीजिए. Ashok Chavan's cases continue to go on. If he is found guilty, and he has said it himself, he will have to face the consequences. And Arvind Kejriwal, if he joins you, बेल तो मिल जाएगी? नहीं, ज्वाइन करने के लिए हमको तय करना पड़ता है, सामने वाला नहीं तय करता है। वी डिसाइड कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं ज्वाइन करेगा। पर आप तो सबको वेलकम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं है। बीजेपी में आजकल लोग कह रहे हैं इतना इंपोर्ट हो रहा है, आम आदमी पार्टी से आप ले लेते हो, कांग्रेस से आप ले लेते हो, ऐसा कोई दल ही नहीं है। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि कोई देश में कैंडिडेट बचेगा ही नहीं किसी और पार्टी में। ऐसा है नाविका जी कि कई वर्ष पहले मैंने सवाल एक बार हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता थे उनसे पूछा था, कई वर्ष पहले। तब भी हमने कुछ बाहर के लोग लिए थे और उस समय मैं भी उम्र में कम था, तो मैंने थोड़ा उस पर टिप्पणी की थी। तब मुझे ये बताया गया था, और दैट रिंग्स इन माय माइंड इवन टुडे, कि हमें सारे समाज को साथ में लेके चलना है, समाज के हर वर्ग को वेलकम करना है, समाज के अलग अलग लोग जुड़े जिससे पार्टी का भी विस्तार हो, पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी विनेबिलिटी भी बढ़े, तब जाके हम देश की सेवा कर पाएंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करने में सफल होंगे। हो सकता है अलोंग द वे पार्टी 100% कोई कोर आइडियोलॉजी जो हमने 1950 में शुरू की थी भारतीय जनसंघ के समय से, एग्जैक्ट आइडियोलॉजी
में से रूटेड हर एक व्यक्ति ना हो, लेकिन नए लोगों को जोड़ेंगे, नए आइडियाज आएंगे, नए समाज में प्रभाव बढ़ेगा, और उसमें अगर कोई गलत काम करेगा तो उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी, व्यवस्थाएं उन पर कार्रवाई करेगी. हम सर्टिफिकेट देने नहीं बैठे हैं किसी को, गुड और बैड. एक बेसिक स्क्रीनिंग जरूर करते हैं, और बेसिक स्क्रीनिंग में अगर लगता है कि द पर्सन कैन बी टेकन एंड वी एक्सेप्ट पीपल, बट clearly with the understanding that there are no assurances. If at all any case is pending, anything is in process, the law will take its own course. बेसिक स्क्रीनिंग आप करते हैं तो पेंडिंग सीबीआई केसेस डू नॉट शो अप and blip in your basic screening. So everything is screened and finally a decision is taken based on the data that is put up. But these are people your party has said have, done corruption, have taken away the rights. And when they land up in your party, tell me, isn't it ironical? Why should people of India believe that you are really out to clean corruption? Because these people find their way. चुनाव के समय आप इनको क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में ये आपके साथ बैठे हुए होते हैं. Let us just clarify between two things. One is the past and one is the future. We are cleaning out corruption, and that is evident from a 10-year scam-free government that the BJP has run and NDA has run. As regards the old cases, as I said, there is no let-up. Whoever it may be, whichever party the person may be, the law will take its own course. So I see absolutely no connection between the... But they're welcome to join your party. Depending on each case, we categorically decide basis individual case and what they bring to the table. So the question really goes from here to the alliances that you are trying to make, BJD, Akali Dal. पहले तो आप इनसे दूर हो जाते हैं, चुनाव का वक्त आता है आप इनके साथ हो जाते हैं. The point I'm making is, what happens to ideology? What happens to the platform on which you fight elections? 2013, you said something. Those people are now part of the BJP bandwagon. Are we diluting ideology? I think the basic ideology of the BJP is so strong that, or of the Jan Sangh originally, and our larger family is so strong that nobody can ever dilute it. It is, we are rooted in that. The main leadership is completely rooted in our ideology. People like me have grown up from childhood steeped in that ideology. So that ideology is very, very powerful. And it can absorb a lot of people coming from outside the ideology. हम उनको हमारे रंग में ढल देंगे, हमें उनका रंग कभी नहीं चढ़ सकता. तो राहुल गांधी ज्वाइन कर सकते हैं? We are looking for people of substance. We are looking for people who bring value to the party, who add winnability to the party, who come with ideas, who come with a vision for the country, who talk about the unity and integrity of the country. I suspect he will not fit this bill. Kejriwal? Probably a tad less than the first name. So, matlab you are selective. We don't want divisive forces or forces who are really not looking at the best interests of India in our party. But that certification you do. We assess each individual and take that. Let me ask you, Mr. Piyush Goyal, 370 seats is the target stated by the Prime Minister for the BJP alone. Do you think this is achievable given the fact that 2019 was a peak for Prime Minister Modi, 303 seats. From there on to 370 is another big jump. As a BJP Karyakarta, a minister, a contestant this time, are you confident that 370 is achievable? मोदी है तो मुमकिन है. मैं समझता हूं कि I think in life, and I see a lot of youngsters in the room today, and a lot of your viewers, youngsters would be viewing your channel. In life, one must never say die. One must always have the can-do spirit.
and one must always aspire high. When you aspire high, you will achieve high. वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ओम शांति ओम में, जब किसी चीज की इच्छा बहुत मजबूत हो, बहुत ज्यादा तुम किसी चीज की इच्छा करो, पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है आपको सफल बनाने में. I think it's Paul Coelho's quote. If you desire something with great passion, the entire universe conspires to help you achieve that. And I think that's been the way of working of this government for the last 10 years. Who had imagined, most people in this room are not voters in 2014, but for those who were, you all were all thinking and vacillating, kitni seats aayengi BJP ki, they'll need allies support, this, that. We were confident we'll cross 272. We went public with that number and we got 282. When 2019 election was happening, I remember probably in the same hall in another program, I had said in October, if I'm not mistaken, October 2018, that BJP will get between 297 and 303 seats. And then I repeated it at the ET Awards in Mumbai. In November 2018, you can Google, one of you can Google it. In November 2018, my memory can be, dates can be here and there, figure is not. Figure was 297 to 303. We got 303. We are working to get 370 this time. We will cross 400 as the NDA. And I would recommend to all of you that in anything you do in life, there is never a peak. Navika ji may have found 19 as a peak. And I certainly hope the Times Now channel doesn't work with such low ambition peaks. Always aspire big, Navika ji. Your channel should aspire much, much higher than where you are. Just like we aspire for India, a developed and prosperous India by 2047. And we want you to be a part of that journey for your own prosperity. Aspire तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं. उनकी एस्पिरेशन को आप कम हाँक रहे हैं. क्योंकि क्षमता होनी चाहिए. एस्पिरेशन पे विश्वसनीयता होनी चाहिए. एस्पिरेशन करने के लिए दूरदृष्टता चाहिए. अब दुर्भाग्य से ना तो क्षमता है, ना आत्मविश्वास है, ना लोगों के बीच में विश्वास है, विश्वसनीयता है, और ना दूरदृष्टि या विजन है. ऐसी परिस्थिति में उनकी एस्पिरेशन, पहले मैंने कहा ना, वो अपना तय तो कर ले, नेता तो घोषित होने की हिम्मत करें. वो तो अमेठी से भी भाग गए एक सेफ सीट ढूंढने के लिए. इस बार स्मृति जी ने शायद आपके सामने ही चुनौती दी थी कि उन्होंने आना चाहिए अमेठी, पर आए नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हम सुन रहे थे प्रियंका गांधी जी खड़ी होंगी, फिर वही पुराना कैंडिडेट जो कई वर्षों से मुंह की हार खा रहे हैं वहां पे, वही कांग्रेस ने अनाउंस किया. हिम्मत होनी चाहिए लड़ने के लिए. दैट इज टोटली मिसिंग इन द कांग्रेस. Well, I must make an observation. आप हमारे सारे इंटरव्यूज देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि टाइम्स नाउ एस्पायर भी करता है, पीक्स, अपने ही पीक्स को क्रॉस भी करता है, और आपके जहन में भी रहता है. देखो कितना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है. हमें तो बोल दिया हमने 2019 में पीक किया, और आप एस्पिरेशन ज्यादा रखते हो. Peak at that time I said, but never mind. By the way, excuse me, when you cross a mountain in life, and I say this to all the youngsters in the room particularly, and to Vineet Jain and his colleagues also. Whenever you cross a mountain in your life, remember there are many, many more mountains ahead of you to cross. Never be satisfied. Always have the desire to do more, achieve more. Keep this mantra all your life. I can't contradict that, and that really must be the passion of everybody's life. But again, coming back to elections and seats, South of India, last time in 2019, 130 seats, you got about 29 in the south of India. And at that time, you had Karnataka as a state under the BJP. This time, you have no government in the south of India. Do you think it will be a challenge?
Well, we have taken massive strides in terms of development and outreach in the southern parts of India. The BJP, after many years, has a very strong leader in Tamil Nadu, Annamalai. I have myself participated in many of his programs. His Enna Man Enna Makkal Yatra was a resounding success. What a response across Tamil Nadu. Prime Minister Narendra Modi's popularity is growing day by day in Tamil Nadu. Kerala is fed up of governments of the left or the Congress-led UDF because alternately they come into power and have done nothing for the development of Kerala, God's own country. So much potential, but just dependent on remittances. They have not been able to really create the culture of growth and development in that state. In Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu ji realized that he had made a mistake. He's come back with us. We are fighting an alliance and we'll sweep the poll over there. Karnataka in less than a year, the people are frustrated with a divisive government, with a government which has absolutely not fulfilled any of their promises. So I see a resurgence in South India for the BJP in the coming election. Northeast is going to be a full, complete sweep for BJP and NDA. UP, we won 64 out of 80 seats last time. 80. 64 out of 80. This time around, we will be not less than 78. Some people tell me you may actually go right up to 80. So the aspirations and our effort is really strong across the country. We will all collectively wait for the 4th of June and you'll see the results which will really satisfy and gladden the hearts of 140 crore Indians. Bengal? Bengal, Nishit Pramanik, our senior leader and minister from Bengal, and I were chatting yesterday. And he said, we were 18 last time. This time, at the very least, we will go somewhere between 25 and 30. But given the mood on the ground there and the sentiment of the people, the kind of anger against a corrupt, insensitive government, also a government which over the last few years has been totally anti-development of that state. He said we won't be surprised if we can go even above up to 35. So I think Bengal is going to be a big surprise. The Honorable Prime Minister spoke to our candidate from the constituency where Sandesh Khali is. And I tell you, the mood of the nation, the mood of the West Bengal people, particularly the women, is such that ek tarfa BJP ki taraf झुकाव होने वाला है. And for that matter, wherever I go, the youth and the women are completely standing stoically and solidly behind Mr. Modi. Wherever I've gone, महिलाओं में और युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो स्नेह है, जो विश्वास है, जिस प्रकार का उनके अंदर डिजायर है, एक एस्पिरेशन है अच्छे भविष्य के लिए, उनको पता है कि मोदी ही उनके भविष्य को संवार सकता है. Electoral bonds. You think the decision of the courts has put the BJP on the कल back आपने foot? बहुत उसके ऊपर निर्मला जी से बात कर ली, उसमें और आप क्या ऐड करना चाहते हैं? Ladies and gentlemen, a big round of applause because the Times Now summit has been followed in detail by Minister Piyush Goyal. But honestly, you've been the treasurer of the party. And I am not. Mr. Rajesh Agarwal is. I said you've been In the past. in the past. I want to ask you, money power in elections. Is it still a force that requires debate? Because yesterday the finance minister, and you must have seen that interview, she said she still, after being the finance minister, does not have enough funds to contest a Lok Sabha election. Money power really doesn't play any role in elections. We have fought elections
with nothing, no resources at all also, and we have won. Unfortunately, the state of Tamil Nadu and the state of Andhra Pradesh, they have over the years seen a lot of irregularities in electoral politics. We are keen that we get an opportunity to come into government in these states and change the way of fighting an election, make it more driven by policy, driven by performance, and possibly that is what was being alluded to. I personally think money power doesn't determine either the success or failure of a party or a candidate. It will always be good governance. It will always be public welfare. It will always be the hope and aspiration of in the people of India, which will determine success. And today, that aspiration of 140 crore Bharatvasis is behind Prime Minister Narendra Modi. So let me get on to a rapid fire round with you. And let me ask you, who amongst the current day politicians do you admire the most? क्या रैपिड फायर में सवाल तो नहीं उठाओ Other सेम than Prime Minister क्वेश्चंस Modi. सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन Other than Prime ये Minister. प्रश्न तो आपने कल भी पूछे थे कुछ आज के लिए नए रैपिड फायर अच्छा, क्वेश्चंस आप लाए ये बताइए ऑपोजिशन लीडर में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? गुड क्वेश्चन अब Thank God I passed. इट इज लाइक आस्किंग कि जब आप रामायण देखते हो तो आपको रावण ज्यादा बुरा लगता है या आपको शूर्पणखा ज्यादा बुरी लगती है? ये तो उस प्रकार का क्वेश्चन हो गया. रावण कौन, शूर्पणखा कौन? नहीं मुझे नहीं मालूम. आई डोंट नो कौन क्या. मैं तो एक एनालॉजी ले रहा हूं कि जब हम रामायण देखते हैं तो बुरा बुरा ही होता है, गलत गलत ही होता है, अच्छा अच्छा ही होता है. तो हमारे सामने और देश के सामने तो आज ये चुनौती है कि वो अच्छे और बुरे के बीच में आकलन कर ले. अभी अभी होली मनाई है हम सब ने. होली क्या है? होली तो सच्चाई की विजय बुराई के ऊपर है. होली का दहन करते हैं, यू आर अवेयर ना. होली के प्रीवियस नाइट हम होली जलाते हैं और उसमें सब बुराई को, सब गलत चीजों को जला के राख कर देते हैं और अगले दिन रंगों से खेलते हैं आपस में, हर्ष और उल्लास से भविष्य की तरफ देखते हैं. हम तो उस सोच के लोग हैं. और आज इतना शुभ दिन है, शिव जयंती है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज जयंती है. वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश को पहली बार एक भारतवर्ष के रूप में पूरा लड़ाई लड़के जीता था और भारत की स्थापना की थी. वो व्यक्ति है जिसने भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी. फोर्ट्स बनाए थे, आपको ध्यान हो, लोहागढ़, रायगढ़, सब फोर्ट्स बनाए. पहली बार नेवी की कल्पना छत्रपति जी शिवाजी ने की थी. तो आज इतने शुभ दिन पे देश की सुरक्षा अच्छी हो, देश में गरीबों का कल्याण हो, देश में युवा युवतियों को अच्छे अवसर मिले, देश में महिलाओं का सम्मान हो, इन चीजों की चिंता चल रही है. वो प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस करने में लगे हुए हैं. आपको पड़ी है कुछ विपक्ष की कौन है क्या है, हाउ डज इट मैटर? Doesn't matter. वो भी तो इस देश के सिटीजन हैं. आप सत्ता में हैं पर आप सत्ता में सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक और विषय है कि कभी भी अच्छाई और बुराई को मुझे लगता है when you are tolerating something wrong, ये नहीं सोचना चाहिए 10% खराब है इससे चलेगा, ये 100% खराब है नहीं चलेगा. मेरे ख्याल से जो गलत काम हो रहे हैं, मोदी जी ने बीड़ा उठाया कि मुझे इसको समाप्त करना है. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दिस नेगेटिविटी एंड्स इन द कंट्री. देश एक हो. आपने वो 5 प्रण सुने होंगे ना. ऑन 15th August 2022 when the country was celebrating 75 years of independence, what did the Prime Minister offer to 140 crore Indians? 5 प्रण. और 5 प्रण में क्या कहा? देश को विकसित भारत बनाना है 2047 तक.
वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें अपनी गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है. एंड द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ द पीपल. लर्न लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री. हमारी इतिहास में, हमारी परंपराओं में, हमारे अतीत में बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए. उसके आधार पे देश बनाएंगे. देश की एकता और एकजुटता को हम संभाल के रखना है. यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. और 140 करोड़ लोगों को कर्तव्य भावना से सबको मिलके एक कड़ी में हम सब जब मिल जाएंगे, तब भारत को विश्व शक्ति बनाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी. और उसमें 2 एडजंक्ट्स भी दिए थे. एक, भ्रष्टाचार मुक्त करना है भारत को. दूसरा, नारी शक्ति का सम्मान करना है. ये 2 जोड़ दो और 5 प्रण देशवासी एक्सेप्ट कर लें, तो ये जो अमृत काल है इसमें भारत अवश्य विकसित बनेगा. इंडिया विल बी अ डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस नेशन. इंडिया इज अनस्टॉपेबल. थैंक यू. ये रैपिड फायर आपने मेरे ऊपर कर दिया. बट बिफोर आई लेट यू गो, ऐसा कोई अनफिनिश्ड एजेंडा जो अगर आपकी पार्टी पावर में आती है, और हमेशा लोकतंत्र में ये एक ऑप्शन लोगों के ऊपर होता है, लोग चुनेंगे. अगर आप वापस आते हैं, एक अनफिनिश्ड टास्क जो आप करना चाहेंगे आगे अगले 5 साल. मैं मतलब व्यक्तिगत में या पीयूष गोयल. मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने को मिला. 10 साल तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग विभाग में कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका दिया. अगर 5 साल और मौका मिलेगा तो मैं समझता हूं कि हर एक जो 10 साल में काम किया उसमें और स्पीड कैसे ला सकता हूं, बड़े स्केल पे कैसे कर सकता हूं, कैसे और स्किलफुली और टैक्टफुली कर सकता हूं, कैसे देश को जो विकसित भारत बनाने का हम सब ने बीड़ा उठाया. इट्स अ कलेक्टिव विजन ऑफ 140 करोड़ इंडियंस. कैसे उसमें और गति ला सकते हैं. अनस्टॉपेबल तो है ही भारत, पर भारत को और तेज गति से कैसे आगे बढ़ाना. भारत को अगर हमें $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी आज से 10 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा, जान हथेली पर है, जान हाजिर है. आई विल डू व्हाटएवर इज इन माय पावर सो दैट इस देश से गरीबी भी मिट जाए और हर व्यक्ति को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ देश में, पूरे देश में लोगों को उसका लाभ मिले. और मेरा मानना है उस मार्ग में हमें 2 चीजों के ऊपर एज ए नेशन हम सब ने काम करना पड़ेगा. आई एम कमिटेड टू इट. जो बात प्रधानमंत्री जी ने पहले साल में ही करी थी, दैट इज Z, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट. एज ए नेशन हमने हमारे हर काम में, हमारे हर कंजम्पशन पैटर्न में, हमारे हर जो भी चीज हम दिन भर करते हैं, उसमें देखना है कि हमारे काम से अच्छी क्वालिटी को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे काम से हम पर्यावरण को कैसे मिनिमाइज करें, उसका प्रभाव खराब ना हो पर्यावरण के लिए. ये हमारे सामने, देश के सामने चुनौती है. आई एम टोटली कमिटेड कि देश की क्वालिटी, और फिर क्वालिटी में सुशासन भी आ जाता है, गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग भी आ जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इट्स अ वेरी ऑल एनकम्पासिंग फिलोसॉफिकल थॉट विच प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन. आई पर्सनली बिलीव जिस दिन 140 करोड़ लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कमरे से बाहर निकलूं तो लाइट के बटन बंद करूं, फैन बंद करूं, एसी ऑफ करूं, अगर मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूं तो गाड़ी सिग्नल पे है या स्कूटर मोटरसाइकिल सिग्नल पे है तो ऑफ करूं, मैं अगर नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक कार खरीद सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले सकता हूं क्या. हमारे हर एक की अगर ये जहन में घुस जाए कि हमको पर्यावरण भी संभालना है और गरीब से गरीब व्यक्ति तक एक अच्छा जीवन देने के लिए हमारी सेवा देनी है, दिस कंट्री इज नॉट ओनली अनस्टॉपेबल, वी विल बी द वर्ल्ड्स सुपर पावर.
Well, on that note, thank you very much, Minister Piyush Goyal, and we wish you the very best for your own election and for your party to make a mark. And we'd also like to say, keep watching Times Now.